Unprecedented gatherings in Haflong, a testament to BJP's popularity. Haflong, the headquarters of Dima Hasao, recently witnessed an unprecedented gathering of people from all walks of life during a rally organized by the Dima Hasao BJP at the NL Daulagapur Sports Complex. The rally held on Friday was a celebration of 8 years of BJP rule in the Dima Hasao Autonomous Council and a pledge to continue working for the betterment of the district and its people. The event began with floral tributes to the portraits of Bharat Mata, Deen Dayal Upadhyaya, and Shyama Prasad Mukherjee, followed by the lighting of a holy lamp by the dignitaries present. The massive crowd, estimated at around 30,000 people, was welcomed by Executive Member Don Painon Thausen, who highlighted the popularity of the BJP due to the tireless efforts of its leaders in developing the region and improving the lives of its people. Speakers at the rally including Chairman Mohit Hojai, District President Dhriti Thausen, and Executive Members Paudaming Riame and Samuel Changson, emphasized the achievements of the Dima Hasao Autonomous Council under the leadership of Chief Executive Member Debalal Gorlosa. They praised the council's success in maintaining peace and fostering development in the district over the past 8 years. Speakers at the rally including Chairman Mohit Hojai, District President Dhriti Thausen, and Executive Members Paudaming Riame and Samuel Changson, emphasized the achievements of the Dima Hasao Autonomous Council under the leadership of Chief Executive Member Debalal Gorlosa. They praised the council's success in maintaining peace and fostering development in the district over the past 8 years. Speaking to the media, District President Dhriti Thausen expressed confidence in the BJP's strong support base in Dima Hasao. He warned that those involved in anti-party activities would face disciplinary action. मेरा डिमा हसाओ में बीजेपी डिमा हसाओ के प्रेसिडेंटशिप मिलने के बाद ये मेरा फर्स्ट पब्लिक मीटिंग है और इस पब्लिक मीटिंग में आज नियर अबाउट 35,000 को प्लस आदमी गैदर हुआ है और ये जो गैदर हुआ ये सब बीजेपी कार्यकर्ता है, दिल से जो बीजेपी मानता है वो लोग आया है और ये सब देबलाल गोलोसा के सपोर्ट में आया है। तो वही बोलना चाहता है कि बीजेपी डिमा हसाओ जो है डिमा हसाओ में पूरा बच चुका है। हर एक आदमी का दिल में बीजेपी है और आने वाले इलेक्शन में भी जो भी स्टेट से या हमसे जो कैंडिडेट रहेगा उसको बड़ी बहुमत से हम लोग जिताएंगे और वही है। और लेकिन आप लोग मीडिया लोग का भी यही सवाल पूछने वाला है, शायद कोई हम लोग के बीच में या कुछ दिन रैली निकाला था या हम लोग के बीच में ये सब चल रहा है, मीडिया में भी निकल रहा है, ये सब झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि आप लोग भी आज देख लिया और उस दिन का आप लोग जो रैली है वो देख लिया। 30,000 का जो गैदरिंग कैसा होता है, उस दिन वाला 30,000 गैदरिंग होता है बोलो, तो हम लोग बोला कि आज 35,000 का, तो उस दिन का लोग 10% भी नहीं होगा, 2-3 हज़ार। तो नंबर्स में आप लोग की पता चल गया होगा कि रैली किसका चला और रैली में कौन आया होगा। तो आज का डेट में डिमा हसाओ में अपोजिशन का सब पार्टी लेके थोड़ा बहुत होगा, क्यों नहीं होगा, उन लोग ही उस दिन रैली किया था। और हमारे बीजेपी के अंदर में भी 1-2 है जो लीडरशिप बनना चाहता है, लीडर नहीं बन पाता है, तो उन लोग क्या होता है कि अपोजिशन के साथ में कुछ मिलके या पहले का जो कैंडिडेट्स रहता है इंडिपेंडेंट, उन लोग से मिलके ये सब रैली किया था। तो वही आज का वही जवाब था हम लोग का और अच्छा लगा। डिमा हसाओ का फुल सपोर्ट है और बीजेपी के ऊपर विश्वास है और जो हम लोग का पार्टी के अगेंस्ट में उस दिन रैली किया था उन लोग को अगेंस्ट में हम लोग एक शोकॉस नोटिस दिया है कि आप लोग एक ऐसा क्यों कदम लिया है और उनको अगेंस्ट में भी हम लोग जो एक्शन लेंगे ही, क्योंकि देखिए बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो डिसिप्लिन में बिलीव करता है और उस दिन का जो रैली है वो लोग बिना परमिशन का, हम लोग का बिना नॉलेज का वही किया है। तो वही है, आशा रहेगा बीजेपी सब डिमा हसाओ वासियों को आने वाला दिन में आज का जैसे आप लोग का फुल सपोर्ट और प्यार मिलेगा और डिमा हसाओ को भी हम लोग सब मिलके हम लोग आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।
Chief Executive Member Gorlosa also addressed the media, asserting that the BJP has no substitute in Dima Hasao due to its significant contributions to the district. He expressed sorrow for the victims of the Umrangso tragedy and refuted false allegations against his spouse related to the incident. है हम लोग का बीच में बहुत सारा हम लोग का ऊपर में एलिगेशन लगाया और बीच में 7 तारीख में एक दो बीजेपी का कार्यकर्ता था और दूसरा बाकी ओपोजिशन बीजेपी झंडा लेके बहुत सारा खराब गाली दिया। तो इसलिए हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को एक यूनिटी और डिमा हसाओ का एक बीजेपी का ऐसा नहीं है बोल के दिखाने के लिए हम लोग रैली किया और साथ में 30,000 भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नया न्यूली हुआ, इसलिए हम लोग मीटिंग किया है। तो आज में हम लोग लगभग 35,000 का टारगेट था, लेकिन अभी भी बाहर में कितना लोग मीटिंग तक पहुंचने नहीं सका कारण ट्रैफिक जाम हो गया ज़्यादा। इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा कि डिमा हसाओ का लोग हर कोना से भी आया, हर कम्युनिटी हर धर्म से भी आया कि हम लोग यूनिटी और शांति डेवलपमेंट चाहिए बोल के वो नारा लिया। तो वो नारा में वो लोग सब भी खुश है और आने वाला दिन में हम लोग का डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी का लीडरशिप में इलेक्शन होगा, उसमें हम लोग फुल तैयारी होना है, उसके लिए भी हम लोग अनाउंसमेंट किया। और आने वाला दिन में जो भी एमएलए टिकट मिलेगा उसको हम लोग जिताने के लिए आज में देख लिया है कि यहाँ पे आदमी 35,000 से ज़्यादा गैदरिंग हुआ। इसका अगर दो होने से भी 70-80,000 हम लोग का वोट है। तो इसलिए हम लोग कोई चिंता नहीं है, आने वाला दिन में बीजेपी सरकार तो बनेगा ही असम में और हम लोग भी यहाँ से जिता के भेजेगा। तो इसमें बहुत सारा कांग्रेस का नेता लोग जिसमें डिमा हसाओ में कुछ कोयला में घटना नहीं होना चाहिए हुआ है, तो उसमें बहुत सारा कांग्रेस का नेता लोग मेरा ऊपर में एलिगेशन लगाया है। ये सब पूरा झूठ है और मेरा घर का आदमी का भी बहुत सारा एलिगेशन लगाया है, सब झूठ है और इसको इंक्वायरी चल रहा है। हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी कमेटी बैठाया है, पुलिस इंक्वायरी चल रहा है। ऐसा नहीं होना, दोबारा ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग भी कोशिश करना है। और ये सब हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का समय में एएमडीसी भी बना और लीगल कांग्रेस का समय में ही है, इसलिए हम लोग इंक्वायरी कराएगा। निर्मल लंगथासा खुद हमको बहुत सारा गाली देता है, लेकिन निर्मल लंगथासा का खुद बड़ो भाई वहाँ पे 20-25 साल से डिपेंडू लंगथासा कोयला कूट के है। अभी भी हम उस दिन जो वहाँ पे घटना हुआ वहाँ पे मैं जाके देखा, तब रास्ता में भी मिला और उनका आसपास में भी वो भी रेड होल करके बैठा है। तो उसके लिए इनिशिएटिव असम सरकार से और कमेटी एसआईटी गठन किया है और जो भी ऐसा घटना इलीगल घटना है उसको हम लोग नहीं छोड़ेगा असम सरकार, और हम लोग का डिमा हसाओ का तरफ से भी साथ देता है। सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी तक कितना दिन तक चलेगा? वो चल रहा है, लेकिन पानी बहुत सारा पुराना है ना, 20-25 साल का पुराना जो गट्टा है वो उसको सब कनेक्शन हो गया है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा जोर लगा रहा है। ये बीच में हम आप लोग का सामने में नहीं आया, लेकिन वहाँ पे हम लोग काम करना पड़ता। वो लोग वहाँ पे नहीं जाता, सिर्फ देवलाल गोरलोसा को कैसे उसमें बदनाम कराएगा। और एक दो मीडिया असम का जो लोग वो लोग ऐसा नहीं करने से अच्छा था कि डिमा हसाओ को शांति डेवलपमेंट लाने में हम लोग बहुत मेहनत करा और डिमा हसाओ को असम से दूर कराने मांगता। वो लोग डिमा हसाओ को असम का लीडर उनको विश्वास हम लोग दिलाने में बहुत मेहनत करने पड़ा। तो नहीं होने वाला चीज़ वो लोग बहुत सारा एलिगेशन लगाता है। हाँ, अभी देखिए डिमा हसाओ असम का एक टूरिज्म पार्ट बनने जा रहा है। इसमें एक दो मीडिया का वो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत सारा माने एलिगेशन लगाता, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को बदनाम करता है हम लोग का असम डिमा हसाओ को। तो इसलिए ऐसा नहीं करने से अच्छा है। हमको बहुत बार बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जाएगा, वो लोग जो बोलना था बोल दिया, जो करना था कर दिया, लेकिन सच झूठ या सच दिखाई देगा ना। हाँ, तो इसलिए 120 वहाँ पे जो कोयला जो गट्टा है उसमें एक भी मेरा घर का हो, मेरा आदमी हो, कोई रिलेटेड नहीं है। उसको अच्छा से इंक्वायरी होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का नेता लोग भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उसमें बोलेगा फिर बीजेपी सरकार है बोल के वो लोग अरेस्ट होने लगा बोल के बोलेगा। देखो, हाँ, इसलिए वो लोग ही बोला इंक्वायरी करने के लिए, हम लोग करेगा इंक्वायरी। थैंक यू। तो सर, अभी हम लोग न्यूज़ लाइव करने में कोई लोग कमेंट देता रहा कि आज स्कूल बंद करा के कोई रेशन कार्ड काट देगा, कोई का वो और काट देगा, ये सब इसके बारे में आज में देखो यहाँ पे खोनबेन डॉन बॉस्को तो आप लोग मालूम है, इसी जाम में अगर स्कूल खोलने से बच्चा लोग प्रॉब्लम होगा ना, नहीं होगा? हाँ, ये तो हो गई प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग एक दिन के लिए थोड़ा ये करो। हाँ, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट को तो हम लोग तो बंद नहीं करा ना। आज में कहाँ रेशन कार्ड बनने के लिए हम लोग बोला है।
कोई रेशन कार्ड बनने के लिए हम लोग नहीं करा है। रेशन कार्ड तो 10 तारीख का पहले पड़ना चाहिए, चावल मिलना चाहिए बोल के हम लोग सब रेशन कार्ड 10 तारीख का पहले ही दे दिया। दोबारा रेशन कार्ड कैसे दिलाएगा? उधर कमेंट में बोला, कमेंट में तो वो लोग तो बोलेगा ही, कमेंट में तो बोलेगा ही वो लोग तो। कमेंट में तो हमको भी बोल देगा कि दिमा हसाओ में 1000 करोड़ मालिक है। दिमा हसाओ में 1000 करोड़ मालिक, 1000 करोड़ पैसा आया क्या? हाँ, नहीं आया था ना। और जो आता है वो भी हम लोग का डायरेक्ट टेंडर होके ऑनलाइन में आता है। हाँ, तो ऐसा माफी बोलेगा वो लोग, तो बोलने वाला तो बोलेगा, क्योंकि जब मुर्गी खाता है सब तो चिकन मीट होके नहीं निकलता। कोई पंखा निकलेगा ना, कोई फेंकने वाला चीज़ निकलेगा। ऐसा माफी हम लोग देश के लिए, समाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने में अच्छा नहीं लगने वाला भी होगा, क्योंकि वो लोग का समय में CM EM मिनिस्टर बनने में दिमा हसाओ को काम नहीं करा। वो शांति सबसे पीछे, सबसे खराब, सबसे डेवलपमेंट नहीं होने वाला वो लोग ही करा है। अभी सबसे अच्छा, सबसे डेवलपमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ने वाला बीजेपी सरकार ही बनाया। मतलब हो गया सर, अब अच्छा काम करता हूँ कि ऑपोजिशन होगा? हाँ, होगा ही। ऑपोजिशन नहीं होने से तो कैसा होगा? हम भी खुद भी 29 में और इलेक्शन नहीं खेलेगा सुसारा। हाँ, दौर से नहीं तो अभी तो फिर, लेकिन 29 में इलेक्शन खेलेगा हम। हाँ, क्योंकि वो लोग हमको ऐसा माने एलिगेशन लगा था ना, हम करके दिखाएगा। हम पहले मीटिंग में भी बोला है, हम लोग जब घर बनाता है ना, कंक्रीट वॉल, उसमें घर बनाने में पानी डालने लगता तब तो मजबूत होता है। ऐसा वहाँ पे वो लोग हमको पानी डालते रहता है ना, और मजबूत होते रहता है हम लोग उनका। आप देखो, आज तक कोई पॉलिटिकल रैली में दिमा हसाओ में ऐसा आदमी गैदरिंग नहीं हुआ। हम लोग का चेयरमैन मोहित साहब तो पुराना लीडर है, वो भी बोला है ASTC समय में भी नहीं हुआ, कांग्रेस समय भी नहीं हुआ। ये भी 2 दिन में हम लोग करा है, कोई धमकी डरा के नहीं करा हम लोग। आज में बहुत सारा लोग, मेरा ऑपोजिशन लोग घर घर में जाके कल रात में धमकी उमकी दिया। गंजुंग एरिया में बस चलाई देगा बोला, क्या हरंगजाव एरिया में उमुक करेगा बोला। गंजुंग से भी 1000 से ज़्यादा आदमी आया, हडिंगमा से भी आया, हरंगजाव से भी आया, पूरा लाइसोंग से भी आया, जेनाम से भी आया, और यहाँ में आप लोग देखने मिला हर कम्युनिटी भी आया। उस दिन तो कितना आया, 3000 4000, वो लोग बोलते हैं 20000। तो ये सब तो बोलने से नहीं होता ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसलिए दिनिला जिंगला हमसिला 35,000 टारगेट इसकाबो वो जिनी रिपोर्ट नि साबाला बुन साउल जाखा और एरा फिलाबो गबलाय सिजाखा और बाजियाबो सुं बांबी और बानि इली मुस पॉलिटिकल मीटिंग जाबो गिरि आं इबुके नाजिनि स्काला दिमा हसाओ के ग्राउसी शांति डेवलपमेंट नांगबा जिं माइले याबानि रिजल्ट जां मिथिलादु इली बा आं दहाबोचतु दिमा हसाओहा स्को मासि बायगो फैका स्कां हालेनि दुनिया बावदु स्कां हालेनि दिमा हसाओनि रां रिखे लांमा बाजिया एन्जॉय खालायमा 5 स्टार हटेला दंमा ब्राबे थांमा गलेबाके बुसावमै नायदु बुसावमैके जों फुरा खालायबो जाया जों दहा लामा दां फालांदु नलाय स्कुल हामदाव फालांदु नलाय जिनि कुस्तां फालांदु जिनि बेसाबेसिक स्कुल खामदु जिनि बेसाबेसिक साखेर माइदे दिसिं जौलायदु खाजालायदु दाराफारा दांदु स्कां हालाय अशान्ति डेभलपमेन्ट थाना थांमा ग्रामा रेमजावमा थिमा बायमा ओलेके जों दिमा हसाओआ लाबबा जाया ओरैबानि आं मिडियानि गेदेमफां क्रिपकेबो आं बिहादु जिनि दिमा हसाओनि सुबुंफोरखौ क्रिपबो जों शान्ति डेभलपमेन्ट के बावमानांगौ तो हाउसिंगनि आंगे हामजावला फ्रे हामजायला फ्रे सिखाबो हामजावला थिमाला नांदौया सिखाबो जों हाथानके जाजिके जागाके बावदु सिखादे निसि जिंजों गाबा और हाथान के जगह के बावया सिकाला बुला निसिन ग्राव थाई गिपिन हाउसिंगनि कांग्रेसनि लीडर रावबोथ आनि नुब्रा जिके नायमानिं मिजिंनिया थितु निसि नायमान मिजिंमन नांगोन आन बिसे आन नुब्रा जिकसे और निसिन लीडर रावलैला आन नुब्रा जिगला नियाबला दिमा जिगजाबाला होजे जिगजाबाला निसिन लीडर रावला दिमा जिं नियाबो निसा नाय मिजिंला नायदु दंफामा मिजिंला नायदु बुकला लाना दिसमा सिकाबो निसिलि लेबल आन बिके नायमा मिजिंमन नांजोदोया आं गौलै आन गेरेफां आं खानाला जुथाय The rally in Haflong was a powerful demonstration of the BJP's popularity and the people's trust in its leadership. As the party continues to work towards the betterment of Dima Hasao, it is clear that the bond between the BJP and the people of the district remains strong and unwavering.